This is 19. What is this number? Is it 3? What is this number? 3? What is this number? 3. तीनों 3 है. ठीक है. That means even if they are different, हमारी ब्रेन में जो ऑप्टिकल सेल्स हैं, they are able to identify the pattern. ठीक है? It's very easy. अच्छा, now if I tell you to write a program on a computer where the program can detect handwritten numbers, how will you do it? You need to make the system learn how to identify the numbers. Okay. So that is a process where you shall be requiring some input, something going on in between, some operations, and lastly the output. This is what you need. Now in a computer screen, it is basically 28 into 28 pixels. 28 by 28 pixel, that is 784 pixels. ठीक है? तो each 784 pixel, if you associate a value between 0 and 1. Okay. 0 corresponds to the dark, to the black and white infinity, darkest, and 1 corresponds to the brightest. Okay. So this set of 784 pixels, they form something called the input. ग्रिड स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब हर एक पॉइंट में हमको पता है कि वेदर इट इज डार्क और ब्राइट. पहला फर्स्ट स्टेज ऑफ इनपुट्स, मैं उसको बोल रहा हूँ दैट कंसिडर दीज इनपुट्स टू बी कॉल्ड एज x into I. ठीक है. The next stage is, so this is the first layer, layer 1. The input layer, जो भी तुम बोल सकते हो. Now, if you go on to the next layer, मान लो numbers है 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9. जितने भी नंबर्स हैं, if I break them into distinct geometrical patterns, जैसे मान लो 1 तो ऐसा नहीं जैसे 1 मतलब सिंपल H पैटर्न, E T G E, it's in the H, which is actually a combination of multiple edges. मतलब मान लो इसी को मैं छोटे छोटे डिवाइड कर देता हूँ। छोटे छोटे एज ऐसे करके एच पैटर्न, तो यहाँ पर भी इट कैन बी कॉल्ड एच ऐसे, और मान लो देयर इज अ लूप, हाफ अ लूप पैटर्न ऐसे, सो देयर इज अ लूप एंड एच, लूप पैटर्न, half a loop pattern plus H. How can I represent 3? 2 half loops. 2 into loop by 2. How can I represent 4? 3 edges. 1 edge, small edge pattern like this, one small edge pattern like this, and one small edge pattern like this. तो ऐसे करके each and every number can be sub-categorized into specific geometrical shapes. That can be a loop or an edge. ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट लेयर है, जो इनपुट लेयर है, मान लो वो रिकॉग्नाइज करता है देयर आर, सो यू हैव सर्टेन, यू हैव दिस कंप्यूटर स्क्रीन में ईच एंड एवरी पिक्सेल्स हैव बीन एसोसिएटेड अ नंबर बिटवीन 0 and 1 ब्राइटनेस। 0 and 1 के बीच उसको एक नंबर असाइन किया गया है। कैसे असाइन किया गया है? मान लो इन दिस केस, मान लो मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, ठीक है। सो हाउ विल आई राइट 2? लेट्स से ऐसे, ठीक है। सो दीज आर द पिक्सेल्स which have been activated. पहला वाला चीज, there are some pixels which have been activated. So this is called an activation. Activation. It's called as A. So what we have learned, we have got the initial input stage, पहला layer, जो कि the different pixels है, 28 to 24, 784 pixels, and when you are putting a number on that pixel, certain of them have been activated, कुछ ज़्यादा कुछ कम। ऐसे मान लो there may be some pixels in between, और इसके पास, तो जो इसके एग्जैक्टली इसके सामने है वो 0 और 1 के बीच में से शायद कोई नंबर को ले ले। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज है कि नेक्स्ट कम टू द लास्ट स्टेज। व्हाट डज द लास्ट स्टेज से? लास्ट स्टेज विल से वेदर बाय नंबर इज बिटवीन 0 and 9।
this will be telling you last stage. So this is the output layer. Okay, input output. इन दोनों लेयर के बीच there can be number of layers in between the input and the output layer where we make the program to learning. Learn. How do we make it learn? ये जो मैं एक्टिवेशन बोल रहा हूँ, as if I am activating some set of neurons. Neurons, brain cells. तो इसका मतलब है when I say activation, certain neurons have been lit up, bright. So that process, तो हम लोग एसोसिएट करते हैं any number, activation मतलब having a number between 0 and 1. So if it is close to 1, we say it has been more activation. And if it is towards 0, less activation. Now as I have told you कि each of these numbers को मैं 0 मैं either certain geometrical shape से डिफाइन कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि initially पहले stage पे ही the computer is able to understand whether it is set of edges or set of nodes. So there are some process by which activation of the first layer is causing an activation of the layers in between. मान लो ये कहा गया है कि if you are getting and if these sort of neurons are activated in the first layer, it implies that certain set of neurons will be activated in the next layer. ठीक है? So that process of transferring the activation from one layer to the next layer, इसको बोलते हैं weight transfer. Weight transfer. We associate this with W. That means ये जो XI जो मेरा इनपुट लेयर था, मैं हर एक 784 इनपुट्स के साथ I am associating a weight. ठीक है? Then I am associating another number to it, जिसको बोलते हैं bias. B stands for bias. Bias is whether my weight is moving towards right or left. And lastly, I get the output. Okay, मैं इस पूरे प्रोसेस में करता हूँ. Now these layers in between, they are called hidden layers. Whether you, by repeated process, the program is able to learn what is by number. ठीक है? So the whole जो पूरा process है इसको हम लोग बोलते हैं neural network (NN) या फिर artificial neural networks. The artificial neural networks is based upon
three layers, three set of layers: input, where you are getting the raw data; output, which is the output of what you are expected; and in between edge, hidden layers. यहाँ पे the program is able to learn. Learn. I stands for input, O stands for output, H stands for hidden. ये एक से ज़्यादा होता है. Number of layers. This is where the learning takes place. और learning मतलब if I am getting an input in the initial layer, I am associating certain weights with input. I am associating a bias, that is fine tuning. मैं इसको फाइन ट्यून कर रहा हूँ और इससे मुझको एक फंक्शन मिल रहा है z, and function of that z is called the activation function. ठीक है. और लर्निंग मतलब आई एम कैलकुलेटिंग सम लॉस, associated with each and every operations, और मैं उस लॉस को फिर यूजिंग दैट लॉस मतलब L, आई एम चेंजिंग माई वेट. मतलब इनिशियली मेरा वेट अगर W था, आफ्टर आई हैव कैलकुलेटेड द लॉस, द न्यू वेट विल बी W minus rate of loss this is whole process of neural network. I will come मैं धीरे धीरे हर एक step को explain करूँगा. Okay. Now before going to the details, I would like to discuss some terms. जैसे बहुत सारे टर्म्स हैं. AI is one term. W is the weight. तो लोगों ने अभी तक जितना भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जितना मशीन लर्निंग, जितना भी सुना है, बहुत सारे टर्म्स के बारे में लोगों ने सुना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू हैव हर्ड, मशीन लर्निंग यू हैव हर्ड. ठीक है. न्यूरल नेटवर्क यू हैव हर्ड, डीप लर्निंग. ठीक है. और लास्ट है डेटा साइंस. ठीक है ना. इन सब चीज़ों को यू हैव हर्ड. सो हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर. So what is actually they are all linked. So artificial intelligence basically the whole track says you make the machine जो है you make it learn, and after learning you make it take decision. This is the main ultimate objective. ठीक है. और डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस है कि जितने भी हमारे रॉ डेटा है उसको इट प्रोसेस करके ये कुछ हिडन पैटर्न्स तुम लोगों को देता है. आजकल बहुत रॉ डेटा यूज़ करते हैं. मतलब शॉपिंग में आ जाता है ना, एड्स तुम लोग आ जाते हैं ना, तो देख से रॉ डेटा कि कौन सा साइट तुम लोग जा रहे हो. सो दिस व्हाट इज द मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लर्न, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ना. वर्ड लर्निंग इज लर्निंग एक प्रोसेस है. बाय using certain tools
You make the system learn. The system automatically learns the thing. What is deep learning? Deep learning actually is a process by which you have to associate number of layers to learn the thing. Deep मतलब you go deep into learning. ये number of layers बहुत ज़्यादा है. Large number of layers, that's why it's called deep. And इसका जो architecture है, deep learning का जो architecture है, ये is actually the neural network. ठीक, आर्किटेक्चर मतलब जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, we have got an input, you have got hidden layers and so this is hidden layer मतलब summation wi xi plus b. ठीक, this is the whole thing. तो इनमें से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये दोनों तो द मेन क्रक्स ऑफ द सिस्टम है. जो हम लोग फोकस करेंगे बेसिकली डीप लर्निंग के ऊपर, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द न्यूरल नेटवर्क. ठीक है. अच्छा, नाउ लेट अस गो बैक टू द प्रॉब्लम जो हम लोगों ने जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया. The problem of 3. तुमको आइडेंटिफाई करना है 3. तो फर्स्ट स्टेप हो गया. You have to identify the digit. Digit identification. This is the ultimate objective by using neural network NN. Yeah, artificial neural network which you use. What is the first step? The input xi is the input. So what is input? Input is 28 into 28, that is equal to 784 pixels, and associating each pixel with certain level of number, क्योंकि 0 and 1 के बीच में है, based upon its brightness. कितना bright है, कितना dark है. This is the first step. इसके बाद we move on to the next layer, hidden layer number 1. hidden layer number 1 में हम लोग क्या एसोसिएट कर रहे हैं? We are associating weight w I x I. वेट एसोसिएट करना मतलब क्या हो गया? मान लो ये जो 3 नंबर है, 3 हम लोग नहीं जानते ये 3. We would like, we know that certain pixels surrounding this number have been activated. Now, in this 3, हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे just for example,
ये मैंने 3 लिखा है यहाँ पे। नाउ हर एक का एक 0 एंड 1 के बीच एक नंबर है, ईच वन ऑफ देम हैज गॉट अ नंबर। ये मान लो वो बहुत जो दूर है, ये ऑल ऑफ देम आर बिटवीन 0 एंड 1। लेकिन जस्ट इसके नज़दीक जो नंबर, टू मेक इट मोर प्रोमिनेंट, would like to have these pixels, ये जो पिक्सल है जिसके ऊपर से ये जा रहा है, to increase its resolution, एक तरफ से तुम बोलो डिजिटल रेजोल्यूशन मुझको अगर इम्प्रूव करना है तो मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? इफ आई मेक द नियर बाई पिक्सल्स मूव टूवर्ड्स 0, और ये जो पिक्सल्स है, इफ आई मेक देम मूव टूवर्ड्स 1, मेक द मोर ब्राइट, और जो नियर बाई पिक्सल्स है जहाँ से ये पास नहीं किया है, इफ आई मेक देम गो टूवर्ड्स मोर डार्केस्ट साइड, इससे क्या होगा? मेरा रेजोल्यूशन विल इंक्रीज, राइट? इट विल बी बेटर रिजॉल्व। इसीलिए दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एक्टिवेशन टूवर्ड्स 0 एंड टूवर्ड्स 1, इसी का हम लोग बोलते हैं वेट। हम लोग इसी इसके हर एक पिक्सल के साथ हम लोग वेट एसोसिएट करते हैं। Just for example, let's initially मान लो ये जो वैल्यूज थे, ये मान लो था 0, ये मान लो था 0.95, यहाँ ये 3 का नंबर पास हुआ है, ये मान लो था 0.95, जब मतलब 0.92, ये भी मान लो 0.95, लेकिन ये जो नंबर से मान लो ये है 0.75, ये 0.65, ये दूसरी तरह से 0.65, 0.75। इसे क्या हो रहा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्राइटनेस इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब ये भी ब्राइट दिखेगा, ये भी ब्राइट दिखेगा। एंड टू मेक दिस, मैं अगर इसको आई वुड लाइक टू रिड्यूस दिस ब्राइटनेस, जहाँ से मेरा ये 3 पास नहीं हो रहा है, टूवर्ड्स अ डार्केस्ट साइड, ठीक है? मैं हर एक वेट को मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई करके, जो कि इसका वेट है, मैं इसको लोअर वैल्यूज टूवर्ड्स 0 में कर लेके जा रहा हूँ। So that will make my 0.95 look more prominent. ठीक है? This process of changing the number, making the number less active, and making certain pixels more active and certain inputs less active, this process को बोलते हैं associating weight. ठीक है? अच्छा, उसके बाद there are some fine tuning going on. That fine tuning is called a bias. B वो भी एक नंबर है। तो इससे हमको we get a certain numbers Z. तो ये मान लो it's layer number 2. ओके, लेयर नंबर 2, मान लो ये 3 नहीं होके ये होता 9, थ्री की जगह पे अगर 9 है तो फिर क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पे? एक सिंगल लूप नहीं होता, इट वुड हैव बीन वन सिंगल लूप, वन one single loop ऐसे and one straight line. This is 9. So on the first layer में it has recognized that 0 first loop. ठीक है? In the layer 2 it will recognize
the edge one. लेकिन ये तो बहुत सारा हो सकता है ना. I can also associate इसके साथ मैं अगर दूसरा एक लूप दे दूँ, so it will become 8, right? या फिर for example let it be 4. 4 is a combination of this one, and this one. तो मानो फर्स्ट लूप में लेयर 1 में ये रिकॉग्नाइज किया है कि एक सिंगल एज, एक एज पैटर्न है. लेयर 2 में इसको रिकॉग्नाइज करना है कि देयर इज अनदर एज व्हिच इज स्लाइड एज. So the activation needs to be transferred from layer 1 to the next layer. इसीलिए I require a loss function. लॉस फंक्शन होने से पहले ये जो z मुझको मिला, I will associate this z with a function जिसको मैं बोल रहा हूँ एक्टिवेशन. A very common activation function which is used is called a sigmoid function. बहुत सारे activation functions हैं, इसमें सबसे पॉपुलर है sigmoid. Sigmoid मतलब so it gives you a value between 0 and 1. 0 and 1 के बीच वैल्यू देता है. तो जो भी मेरा वेट है और जो भी मेरा बायस है उसके साथ मुझे जो नंबर मिला है, तो नेक्स्ट लेयर जाने से पहले एक्टिवेशन फंक्शन नेक्स्ट जो लेयर पे एक्टिवेट कर रहा है, दैट इज बिटवीन 0 and 1. That means there are certain set of pixels in the next layer which are getting activated. इससे क्या हो रहा है? The activation function certain pixels in the next hidden layer which are getting activated. इसी तरह से एक्टिवेशन ट्रांसफर होता है, एक स्टेज में नहीं होता है. विथ नंबर ऑफ इतने लेयर्स एक्टिवेशन. नाउ ऐसे करते करते मैं लास्ट स्टेज में आ गया. आई हैव कम टू द लास्ट स्टेज. लास्ट स्टेज में आने के बाद लास्ट स्टेज में भी एक एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली RLU फंक्शन. Relative linear relative linear unit function. It gives you a value maximum of 0 and z. Ultimately, whether by output is giving you the particular value of max.
अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज ये जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस मतलब हर एक स्टेज में इट कैलकुलेट्स लॉस, जैसे मैंने पहले कहा था. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस. एक है मीन स्क्वायर्ड एरर लॉस, MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर, जो नॉर्मल स्टैटिस्टिकल में तुम लोग जो यूज करते हो. इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1/n number of operations y minus y cap whole square. Y stands for the predicted value, this is the true value. इसको रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं. दिस इज वन एरर. दूसरा एक फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एंट्रोपी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग. क्रॉस एंट्रोपी. क्रॉस एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस log y predicted, I think. So y log. ये क्या करता है? It actually cancels the false positives. इसको बोलते हैं it penalizes the false positives. पेनलाइजेस फॉल्स पॉजिटिव का मतलब हुआ, अभी तुम लोगों ने इस सॉफ्टवेयर का नाम भी सुना होगा. टर्निटी बोलते एक सॉफ्टवेयर है. दिस सॉफ्टवेयर टर्निटी. टर्निटी इज अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्लेगैरिज्म एंड AI डिटेक्शन सॉफ्टवेयर. ठीक है. ये बेसिकली कोई आर्टिकल तुमने लिखा है मान लो, तो वेदर यू हैव टेकन द आर्टिकल ऑफ योर ओन और इंटरनेट से जस्ट कॉपी पेस्ट करके लिख दिया है, या फिर AI को यूज़ करके तुमने लिखा है, सो इट डिटेक्ट्स दैट. प्लेगैरिज्म तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली अभी क्या बहुत सारे AI टूल्स में तुम लोग देखोगे आजकल एक नया फीचर ऐड हुआ है. इसको बोलते हैं AI ह्यूमनाइजर. या ह्यूमनाइजर मतलब सपोज यू रिटन विद AI, फिर तुम लोग इससे तुम अगर प्रोसेस कर देते हो तो नॉर्मली इट वोंट बी डिटेक्टेड बाय दिस AI डिटेक्शन सॉफ्टवेयर. ये जीरो बोल देगा कि ये ऐसे नहीं है. तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए टर्निटी ने अपना एक नया फीचर इसमें इंट्रोड्यूस किया है, विच एक्चुअली टेल्स वेदर इट इज AI ह्यूमनाइजर और नॉट. Now, why I'm telling is ये जो क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन है, क्रॉस एंट्रोपी मतलब कुछ पता नहीं, डिसऑर्डर. तो बेसिकली योर वैल्यू इज मान लो योर ट्रू वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू, इट इज 1.0. ठीक है. इसको मैं बोलता हूँ y, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है y क्या है, ये एक केस में 0.9 आया है, ठीक है, और दूसरे केस में है 0.1.
दोनों करेक्ट है, पॉजिटिव है दोनों, दैट इज शुड बी पॉजिटिव, लेकिन आई वांट दैट वैल्यू विच इज क्लोज टू माई ओरिजिनल वैल्यू। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि विच इज द क्लोजेस्ट वन, जितना क्लोज होगा मैं उसको रखूँगा, और जो जितना दूर होगा मैं उसको हटा दूँगा। ठीक है, तो इस केस में मेरा जो लॉस्ट फंक्शन होगा, लॉस्ट फंक्शन जो कि क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन है, ये क्या बोल रहा है, इट इज माइनस लॉग वाई, सॉरी ओरिजिनल वैल्यू क्या लिखा था लास्ट, हाँ लॉग वाई, ठीक है। तो नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ 0.9 करके देखो कितना आ रहा है, 0.1 में देखो, आई थिंक यू हैव द लैपटॉप। जीरो पॉइंट 9 में कितना आ रहा है, नहीं लॉग वाई तो 1 है, लॉग वाई तो छोड़ दो, वाई तो 1 है, लॉग 0.9 कितना आ रहा है, 0.0 और ना ठीक है, माइनस तो ठीक है, और 0.1 कितना आ रहा है, नेचुरल लॉग लो ना, कौन सा वाला लॉग लो, ले रहे हो ln, take ln 0.9 नेचुरल लॉग 0.9 का वैल्यू हो जाएगा आई थिंक 0.105, और लॉग 0.1 का वैल्यू होगा हाँ 0.2 आई थिंक 2.3 ठीक है, ठीक है। तो नाउ इट सेज दैट द लॉस इज मच हायर for a value which is far away from the true value. This is the idea. ln not sure, natural ln पर ln, हाँ ln log of natural numbers, ठीक है। तो बेसिक आइडिया इज कि मैं फॉल्स पॉजिटिव्स को मैं रिमूव कर दूँ, so this is positive but I don't want this to be included in my result because this is false positive, exact 1 मेरा ट्रू वैल्यू है, लेकिन ये 1 के आसपास पॉजिटिव हो रहा है लेकिन बहुत दूर है, सो आई एम पेनलाइजिंग, इसको बोलते हैं पेनलाइजिंग द फॉल्स पॉजिटिव। तो इसी तरह से ये वाई ह्यूमन नजर में तुम टर्म भी देखोगे तो यहाँ पर ये सेम टर्म यूज होता है, फॉल्स पॉजिटिव्स। फॉल्स पॉजिटिव को वो लोग रिजेक्ट करते हैं, देन दे डोंट इंक्लूड इट, ठीक है। टर्म भी अच्छा, नाउ ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, एक्टिवेशन फंक्शन इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन जैसे मैंने कहा था, इट कैन बी ए सिग्मॉइड फंक्शन, वन प्लस e to the power minus z. It can be
relative linear unit, that is कितना था यूनिट कितना लिखा था मैंने max of 0 and z and it can also be a tangent function. Tangent मतलब e to the power z minus e to the power minus z plus. So different conditions में ये basically ये वाला function जो basically it is used in the hidden layers, in between layers में ये ज़्यादा यूज होता है. It is also used in the hidden layers, which includes transferring the activation. मैं activation को transfer कर रहा हूँ from one layer to another, और ये वाला जो यूज होता है that is the output layer. ठीक है. This whole neural network का application in materials engineering जो होता है, material engineering में सबसे जो common example है that is मान लो percentage carbon के साथ you would like to find out what is the hardness of steel. ठीक है. उसके बाद what are the defects in crystal? You can identify phase identification, ठीक है. और lastly DFT density function theory में यूज होता है, and it is also used in some materials discovery. So there are different ways by which you can use the neural network. Okay. So we will just take an example of this one today. और तुम लोग याद है you will use the Python codes in artificial neural network. वो याद है कौन सा पैटर्न लाइब्रेरी यूज होता है फॉर ANN मशीन लर्निंग में? टू रिमेंबर एक सर्टेन लाइब्रेरी यूज होता है, जैसे इंपोर्ट NPY है ना. तो इसके लिए मशीन लर्निंग के लिए एक सर्टेन सेट ऑफ टेंसर फ्लो हम लोग उसको यूज करेंगे. बिफोर गोइंग इनटू दैट आई विल गिव यू सम MCQ